In the fear of the Lord, one has strong confidence, and his children will have refuge. यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। This is the promise from the scriptures in Proverbs 14:26. नीति वचन 14 अध्याय 26 वचन से यह प्रतिज्ञा वचन है। You have the fear of the Lord in you. आपके भीतर परमेश्वर का भय है। You say, I have to raise my children with the fear of God. और आप कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना है। You have feared God and followed His commandments and obeyed the word of God. आपने उसका भय माना है, उसका अनुसरण किया है और उसके वचन की शिक्षाओं का पालन किया है। You have feared God and lived righteously before God. आपने परमेश्वर का भय मानते हुए उसके सामने धार्मिकता का जीवन जिया है। You have had the fear of the Lord in you and you have given your offerings to God. आपने परमेश्वर का भय मानते हुए अपने भेंटों को दिया है। You have had the fear of the Lord and you have been a witness about Jesus to others. आप परमेश्वर का भय मानते हैं और आप दूसरों के समक्ष गवाह ठहरे हैं। You have had the fear of the Lord and been patient in the midst of all accusations and the attacks of the evil people. और हर एक आलोचना के मध्य में आप परमेश्वर का भय मानते हुए बड़े धैर्य से खड़े हैं। God blesses you today. परमेश्वर आज आपको आशीष देते हैं। He is your strong confidence. वही आपका दृढ़ गढ़ है। The confidence that God is with you and He is on your side. भरोसा कि परमेश्वर आपकी तरफ से है और आपके साथ है। The confidence that God will perfect everything for you in the midst of the greatest calamity. और यह विश्वास कि परमेश्वर हर एक आपदाओं के बीच में सारी बातों को ठीक और स्थिर करेगा। The confidence that God will be a refuge for your children also. और यह भरोसा कि परमेश्वर आपके संतानों के लिए शरण स्थान बनेगा। God will take care of your children. परमेश्वर आपके बच्चों की देखभाल करेंगे। Perfect everything in their life. उनके जीवन में हर एक बातों को सिद्ध करेंगे। Protect them. उन्हें सुरक्षा देंगे and prosper them. और उन्हें समृद्ध करेंगे। This is God's promise for you और यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए and your family, और आपके परिवार के लिए, including your children. आपके संतानों के लिए भी। Let me share a beautiful testimony with you. आपके समक्ष में एक सुंदर गवाही को मुझे बांटने A sister दीजिए। called Suganti. एक बहन जिनका नाम सुगंती है, Child is Angel. उनकी बेटी एंजल है। When she was 2 years old, जब वो 2 वर्ष की थी, the husband ran away, leaving Suganti all alone. सुगंधी को अकेले छोड़ के उनके पति कहीं चले गए। She didn't know how to bring up her daughter. उन्हें नहीं मालूम था कि अपनी बेटी को बड़ा कैसे करें। She was living in a rented house. वह किराए के मकान में रहा करती थी The child would become sick often. और वो बेटी हमेशा बीमार रहा करती थी From the nose and from the mouth, blood would come out. और मुंह से और नाक से रक्त बहा करता She था। spent all the money she had for the treatment of the child. और उस बच्चे के इलाज के लिए उसने अपनी सारी कुंजी को लगा दिया। It was at that time she heard about the prayer tower of Jesus Calls. और उसी वक्त में उसने प्रार्थना भवन के विषय में जाना। She went there वह उस स्थान पर and गई gave a small offering और एक छोटा सा भेंट दिया and enrolled her child as a young partner in the ministry. और अपनी बेटी को युवा सहभागी में जोड़ा। Every day prayers started going up for the daughter in the prayer tower. और प्रार्थना भवन में प्रत्येक दिन उस बेटी के लिए प्रार्थना होने लगी। God healed the child miraculously. और परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उसे चंगा कर दिया। She started studying, वह पढ़ाई करने लगी got her MA degree. और अपनी MA की डिग्री को भी पाया। Again the mother went to the prayer tower और फिर से माता प्रार्थना भवन गई and said God should get her married. और उसने कहा कि परमेश्वर इस बेटी का विवाह होना चाहिए। Miraculously, a wonderful boy came and married और her. अद्भुत रूप से एक लड़का आया और उसके साथ उस बेटी का विवाह हुआ And she had children. और उनकी संतान हुई। Immediately, the grandmother enrolled both the grandchildren in the young partners plan. और उसके पश्चात ही उन दोनों बच्चों की नानी ने दोनों बच्चों के नाम को युवा सहभागी योजना में जोड़ा। God
blessed them also. परमेश्वर ने उन्हें भी आशीषित किया। He became their refuge, वह उनका शरण स्थान बना their confidence. और उनका भरोसा। And her granddaughter, Genelia, और उनकी नतनीन जेनेलिया, when she got the 10th standard results, जब उसके 10वीं कक्षा के परिणाम आए, out of 500 marks, she had got 483. और 500 अंकों में उसे 483 नंबर मिले, And she got 4 medals. और उसे 4 पदक भी मिले। God honored her before everyone. और परमेश्वर ने सबके सामने उसका आदर किया। Yes, the mother was blessed. और उनकी माता आशीषित हुई, Daughter was blessed. बेटी भी आशीषित The हुई, granddaughter was blessed. बेटी की बेटी भी आशीषित हुई। God is our confidence. परमेश्वर हमारा भरोसा है। When everything fails, जब सब विफल हो जाता है, everyone fails, जब सब विफल हो जाते हैं, He is our only confidence. वही तो हमारा भरोसा है। He will stand with you because you fear the Lord and live righteously. वह आपके संग और साथ खड़ा रहेगा क्योंकि आपने उसका भय माना और धार्मिकता का जीवन जिया है। Children and grandchildren also will have refuge. आपकी संतान और संतानों के संतान के लिए भी वो शरण स्थान है। Lord Jesus, यीशु प्रभु, embrace your children. अपने बच्चों को गले लगा लीजिए, Kiss them. उन्हें प्रेम करें, Kiss them. उन्हें प्रेम You करें। are their refuge. आप उनके शरण स्थान हैं, Whatever has been taken away from them, और जो कुछ भी उनसे ले लिया गया है, give it back to them in double measure. 2 गुने भाग में उन्हें वापस Double करें। measure. 2 गुने भाग All the में finances, let it come back. हर एक आर्थिक बातें वापस आने Let पाए। the people who have run away from their home come back as new people full of the Holy Spirit. जो लोग घर से भाग गए हैं वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर नए व्यक्तित्व में वापस आने पाए। All the positions they have lost, money that they have lost, let it come back to them in Jesus' name. जो पैसे और जो स्थान उन्होंने खो दिया है वो यीशु के नाम से वापस मिलने Let them पाए, get their house back. उनके घर वापस मिलने पाए, Let them get their business back. उनका व्यापार वापस मिलने पाए, Let them get everything back in Jesus' name. और सब कुछ उन्हें वापस मिलने पाए यीशु के नाम And I से। pray for their children, और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, their grandchildren. उनके संतानों के संतान Let के them लिए have the wisdom of the Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा की बुद्धि प्राप्त हो, Excel. वो उत्कृष्ट हो, Have every blessing from the Lord in their life. और परमेश्वर से हर एक आशीषों को प्राप्त करें। No more suffering. अब और कष्ट नहीं, No more suffering. कोई कष्ट नहीं। Reuben, रूबेन, you have many musical talents, आपके पास संगीत की बहुत कला है, but लेकिन you're all alone today. आज आप अकेले हैं। No one to stand with you. आपके साथ कोई भी नहीं है। But as you love the Lord, लेकिन जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते fear of the हैं, Lord परमेश्वर का भय मानते हैं, is filling you right now. इसी वक्त वो आपको परिपूर्ण कर रहे हैं। Lord is raising you up. परमेश्वर आपको उठा रहे हैं। Go and serve Him. जाकर उसकी सेवा करें। You shall have a new door opening in your professional life. आपके कार्य के क्षेत्र में आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। You will prosper. आप समृद्ध होंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद You परमेश्वर। will walk with kings आप राजाओं के साथ चलेंगे and the professionally blessed people. और आप अपने कार्य में आशीषित होंगे। You will rise up to the top. आप ऊंचाई में जाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। दिनेश, his lungs are full of sickness. आपके फेफड़े बीमार अवस्था में हैं। Heal him, Lord. परमेश्वर चंगाई दीजिए। Heal Dinesh, Lord. दिनेश को चंगा करें। Let him use his lungs to preach the gospel. वह अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करे सुसमाचार के प्रचार के लिए। Let the demons run before him. हर एक दुष्ट की आत्मा उसके सामने से भाग खड़े हों। It will happen. यह तो होगा। He'll be an honored man. आप आदर के पात्र ठहरेंगे। I pray for everyone who needs a life हम partner. प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जिन्हें जीवन साथी की आवश्यकता है। Give them the right life partner. उन्हें सही जीवन साथी दीजिए। Thank you for this blessing. धन्यवाद इस आशीष के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। We as a family are coming to Chhattisgarh. हम एक परिवार के रूप में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। Now she is walking to pray for you at the Bastar Prayer Festival. कि आपके लिए बस्तर प्रेयर फेस्टिवल में आपके लिए प्रार्थना करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान,
God who opens the windows of heaven. एक ऐसा परमेश्वर जो आसमान के झरोके खोलकर Oh, much sorrow might have gripped you till this moment. बहुत सारे दर्द ने अभी तक आपको जकड़ा होगा, But God is resurrecting you from that sorrow right now. लेकिन अभी इसी समय दर्द से यीशु आपको छुड़ा रहा है। Julie, you are here. पूछिए जूली। You are saying, I am carrying a child in my womb. और आप कहती हो कि मेरे गर्भ में संतान है। मोर पेटरे गर्भ আছে। The doctors are saying there are complications in the child's body, even as the child is in the womb. और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, उसके शरीर में कुछ तकलीफ है, ठीक नहीं है। वो बच्चा तो बहुत कमजोर है, कैसे हम पैदा करेगा कि नहीं बोल के डॉक्टर खुद बोले। Now Jesus heals the child which is in your womb, Julie. जूली, इस समय जो बच्चा आपके गर्भ में है, परमेश्वर उस बच्चे को चंगाई दे रहा है। ये है मेरा छोटा बच्चा अभिषेक। ओल्ड डॉक्टर दिनाकर प्रोफेसी किए थे। The Lord turns our sorrow into joy. प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देते हैं। From the 8th to the 10th November. 8 से 10 नवंबर तक। जगह है धर्मपुरा ग्राउंड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 0771 433 5600। Come as a family, let's pray together. आइए एक परिवार के रूप में एक साथ जमा हो और एक साथ प्रार्थना करें। Jesus will come and turn your sorrow into joy. यीशु आकर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे।